our gut is, thank you. We're going to understand why our gut is also known as a second brain, and that what we eat and when we eat also impacts our gut. The quality of our sleep is an indication of our gut health. We're going to listen from our experts on gut health and to understand how it can reverse or prevent multitudes of lifestyle diseases. Our speakers who have walked the talk can help you make the right choices. To begin the session, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur to start the session. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 plus years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award, and he's a flag bearer on this journey with a mission, Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's welcome him on this virtual stage. Thank you, Ruchita. Good evening for an exciting Monday session. I hope you all had your early dinner, done some exercise, because if you don't exercise, you cannot ever have holistic health. Technology has increased dramatically, and you need to understand that in order to compensate that, you got to be able to do some exercise deliberately. Even on some days, even if you cannot go for a walk after a meal, all right, open our website, www.slimtrimsexythin.com, and check out some exercises, which are there for blood circulation, for your biceps, for your triceps, for your abdominals. Do some of those exercises instead, but do something. Something will be better than doing nothing. The worst you can do is to have your dinner late at night and then go to sleep. So try and be deliberate about it, and you'll be surprised at how much it will impact your overall health and your whole holistic health. So take this stuff, quite seriously. Gut health is something that has, taken people a long time to understand. But in my opinion, gut health is everything, because even illnesses and diseases like Parkinson, Alzheimer's, dementia, which were originally, thought about that they originated from the brain. Now, more and more research is coming out, and they are probably thinking that it is, not originating in the brain actually, but it originates decades before in the gut. Now, it also stands to reason, just think about it, that if your gut is not healthy, then irrespective of the high quality nutritive food also if you are taking, how will it reach the very extreme parts of your body? And it's very critically important to understand that, keep a track on your nails, keep your track on your toenails, your hand nails, and keep a check on it. Because if the nutrition is not reaching at the extremes, it's the first sign of, the body telling you that your gut health is not really good. So take care of your gut health very seriously. Listen to this episode, which Manoj, who has, had a huge transformation. I mean, if you just look at his before and after photographs, you won't even believe that such a transformation was possible. He's done it. So he's done a lot of wrong things. So, it's very good to listen from somebody who's done the wrong things and then done the right things, because they know it both ways. And listen to him very carefully, because what he has to say has a significant impact on your holistic health. Over to you, Manoj. Thank you very much, Farooq. And as I always say, it is just because of you. अगर आप नहीं होते और साथ में थोड़ा न्यूट्रलाइट नहीं होता, तो it was not possible at all. मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं जो आज हूँ वो हो सकता. So friends, आए जरा क्लास में थोड़ा पढ़ाई करें अभी. Ruchita will help me out in showing the slides. Manoj, I'll just take 1 minute to. It's okay. तब तक मैं जरा बात कर लेता हूँ गट हेल्थ और गट रिसर्च में. मुझे एक सरप्राइज होता है जब मैं लोगों को पूछता हूँ गट का मतलब क्या है, तो लोगों को बेसिकली स्टमक लगता है उसका मतलब. कुछ लोगों को इंटेस्टाइनल वाला पार्ट, जो गट के स्टमक के नीचे वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन का जो पूरा है, जो पेट है, जो आगे आ जाता है ना, ज्यादा करके लोगों का, उसे लोग गट समझते हैं.
रॉन्ग। गट सिर्फ स्टमक नहीं है, गट सिर्फ आपके इंटेस्टाइन वाला पार्ट नहीं है, गट सिर्फ आपका स्टमक और इंटेस्टाइन वाला पार्ट नहीं है। गट स्टार्ट होता है आपके माउथ से, और जहां से आप सारे वेस्ट को एक्सक्रीट करते हो, बेसिकली एनस, वहां तक पूरा गट है। तो राइट फ्रॉम योर माउथ टू योर एनस इज इंटायर पार्ट इज गट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज गट हेल्थ एंड गट रीसेट। इसका मतलब गट के हेल्थ को के बारे में जानना। और जब हम गट रीसेट की बात कर रहे हैं, मतलब रीसेट हम तभी करते हैं जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है ना। जैसे आपके मोबाइल में हो गया, आपके लैपटॉप में हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो गया, तो यू डू रीसेट ना, कि कुछ गड़बड़ है तो लेट रीसेट इट। तो इसका मतलब है गट की हेल्थ भी खराब होती होगी, है ना, और उसको रीसेट करना भी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे अबाउट व्हाट इज गट हेल्थ, वो कैसे खराब होता है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं रोल ऑफ गट में। अगर आपको ये पक्का हो गया, पता हो गया कि गट क्या है, तो गट है जो आपके लेफ्ट साइड में है ना, राइट फ्रॉम योर माउथ टिल योर एनस और रेक्टम, ये पूरा गट का पार्ट है, सिर्फ आपका स्टमक नहीं है। और गट के पार्ट में सी सरप्राइजली इट इज लिवर ऑल्सो, पैनक्रियास भी है, गॉल ब्लैडर भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ गट के अंदर है। मतलब जहां जहां आपका फूड ट्रेवल करता है, वहां वहां ये पूरा पार्ट गट है। तो बेसिकली गट का क्या काम करता है पूरा, तो अभी गट मतलब पेट मत समझिए, ऐसा मत समझिए खाना स्टोर करता है खाली, नो। ओके, ये आपके खाने को तोड़ता है, राइट फ्रॉम योर माउथ, माउथ में खाना आप डालते हो मुंह पे, तो आपका खाना आप तोड़ते हैं वहां पर। और जहां से आपके जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। ये आपके पूरे जो भी आपके बॉडी का वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने में मदद करता है। ये आपके गट माइक्रोब्स को अपने अंदर रखता है और उसको बैलेंस में रखता है। ये बैलेंस वाला पार्ट है, हम इससे बाद में बात करेंगे। और माइक्रोब्स को थोड़ा समझ लेते हैं। माइक्रोब्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जीवाणु हैं, है ना, माइक्रोबायोटा बोल सकते हैं आप उनको। उसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। उनको बैलेंस करना इज बैलेंस वाला पार्ट, और इनको रखना इज हमारे बॉडी के अंदर जो हम रहते हैं अलग अलग जगह पे, राइट फ्रॉम योर माउथ, आपके माउथ में भी बैक्टीरिया हैं। और एक चीज जो आपको मैं डेटा दे सकता हूँ आज, ये कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो, आपके बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता है। मतलब जितना आपका माउथ में बैक्टीरिया होगा, उससे ज्यादा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, है ना। और जितना आपके माउथ में होगा, उससे ज्यादा आपके स्टमक में होगा बैक्टीरिया। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इस पिक्चर में, वैसे वैसे बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता है। और ये जो गट है, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है, जो आपके खाना पचाने में मदद करता है ना, मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड रुचिता। और गट की लेंथ कितनी होगी अंदाजा हमको बता सकता? इट इज अराउंड 25 फीट, इट इज 7.5 मीटर, 25 से 30 सॉरी 25 से 30 फीट के आसपास, 7.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। सो व्हाट इज गट माइक्रोबायोटा, है ना, जिसके ऊपर आज हम ज्यादा बात करने वाले हैं। तो माइक्रोबायोटा बेसिकली हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुंह से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरे गट के जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ पर जीवाणु होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर, मतलब जितने हमारे शरीर के अंदर होते हैं ना, गट वाले पार्ट को निकाल दें तो, गट वाला पार्ट अगर हमारे शरीर से निकाल दें, तो जितने हमारे बाकी शरीर में जितने माइक्रोब्स हैं या फिर जितने जीवाणु हैं, उससे 10 गुना ज्यादा हमारे सिर्फ गट के अंदर है। ये तकरीबन 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर में, 100 ट्रिलियन। ओके, और 5,000 के आसपास अलग अलग जातियां होती हैं इन जीवाणुओं की। तो अगर जब हम 100 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उनको वजन कर दिए, कितना वजन करके उनका कितना वजन होगा, अप्रोक्सीमेटली 2 किलो। 2 किलो सिर्फ हमारे शरीर के अंदर अच्छे और बुरे जो जीवाणु हैं उनका वजन होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो गट माइक्रोबायोटा बेसिकली करते क्या है ना,
तो ये जो करते हैं आपके डाइजेशन करने में आपको हेल्प करते हैं। ये आपके डाइजेस्टरी जो ट्रैक होता है ना, उस ट्रैक की जो फंक्शनिंग है वो सही तरीके से हो, वो सही तरीके से करने में मदद करते हैं। ये जो बाकी अच्छे और बुरे टॉक्सिन्स हैं या बुरे बैक्टीरियाज हैं या पैथोजेंस हैं, उनको रोकने में मदद करता है, बढ़ने में मदद करता है। मतलब अगर आपके अच्छे जीवाणु होंगे तो बुरे वालों को रोकने में मदद करेगा। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ये। और जैसे जैसे जब आप खाना पचाते हो, मेटाबोलाइज करते हो, तो वो शॉर्ट चेन फैटी चेन में कन्वर्ट होता है, जो आपको बहुत सारे काम में शरीर के मदद करता है। तो ये बेसिकली गट माइक्रोबायोटा का फंक्शंस है। ये होते कैसे हैं? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, एक ऑरेंज कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर वाला जो है, अगर आपको नाम पढ़ना है पढ़ लो, ये बैक्टेरोइडेट्स है ग्रीन वाला, और रेड वाला जो है या ऑरेंज वाला जो है फर्मिक्यूटिस है। तो जो ग्रीन वाला जो है ये अच्छे बैक्टीरिया है ना, और जो ऑरेंज वाला है वो बुरा बैक्टीरिया। किस तरह से आपका हेल्दी गट डिसाइड होता है? जितना ज्यादा ग्रीन वाला आपके बॉडी में हो, बैक्टीरियोइडेट्स जितना ज्यादा होगा, उतना आपका बॉडी गट आपकी हेल्थ गट की हेल्थ अच्छी रहेगी। और जितना वाला ऑरेंज अच्छा ज्यादा होगा, उतनी आपकी गट की हेल्थ खराब रहेगी। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप इसको, कि जितना आपका कम ऑरेंज वाला होगा, उतनी आपकी बॉडी या आपके गट की हेल्थ अच्छी होगी। या फिर जितना कम आपका ग्रीन वाला होगा बैक्टीरियोइडेट्स, उतनी आपकी गट की हेल्थ बुरी हो। सिंपल है, ग्रीन वाला ज्यादा होना चाहिए और जो ऑरेंज वाला है वो कम होना चाहिए। इतना ही समझ जाओ काफी है। अच्छे वाले ज्यादा होने चाहिए, बुरे वाले कम होने चाहिए। इसका मतलब क्या? हेल्दी गट क्या होता है? अब आपको दिखाते हैं अगले स्लाइड में। हेल्दी गट ये है, अगर आपके अच्छे बैक्टीरिया 85% से ज्यादा है तो आपका गट हेल्थ अच्छा है, क्योंकि दूसरा फिर खराब वाला 15% के आसपास ही रहेगा, उससे कम रहेगा। अगर आपका गट हेल्दी है तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है? आपकी स्किन अच्छी रहती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपका जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, ये सब कुछ अच्छा रहता है। तो ये हेल्दी गट के फायदे हैं, है ना। अगर आप कंपेयर करें अनहेल्दी गट और हेल्दी गट में डिफरेंस क्या है, आपके अंदर शरीर के अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको दिखेगा, अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूं मैं। अगर आप देखें ये ऑरेंज वाला, अगेन ऑरेंज जो हम बोल रहे हैं कि जो बुरा है और ग्रीन वाला सही है। तो अगर अनहेल्दी गट आपका रहा तो आपको फूड सेंसिटिविटी रहेगी, मतलब आपने थोड़ा भी कभी खाना खाया, कभी कब्ज हो गया, कभी उल्टी होने लगी, कभी जुलाब होने लगा, है ना। कभी आपने छोले ज्यादा खा लिया तो कुछ गड़बड़ हो गया, कभी आपने राजमा ज्यादा खा लिया तो गड़बड़ हो गया, है ना। कुछ लोगों को तो पत्ता गोभी और फूल गोभी खाने से भी हो जाता है, ठीक है। ब्लोटिंग हो जाता है अगर गट आपका ठीक नहीं रहा तो। इनकंसिस्टेंट स्टूल और एक्सेस गैस, मतलब पेट में गैस हो जाना, जो आपका मोशन पास बराबर से नहीं होना, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, खाना खा के आपको अच्छा भी नहीं लगता, अरे यार बोले बहुत ज्यादा हो गया, पेट भर गया, इधर दुख रहा उधर दुख रहा, पेट फूक गया, ये सारी चीजें होती हैं। स्किन में आपके कुछ डिसीज होने के चांसेस हो जाते हैं, एक्जेमा, एक्ने, है ना। अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तो ये भी होता है। आपकी नींद अच्छी नहीं रहती, आप हमेशा थके हुए दिखोगे, आपको हमेशा मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब रहेगा, मतलब आप डिस्टर्ब रहोगे हमेशा, कभी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे बराबर से, है ना। कंफ्यूज स्थिति में रहोगे आप हमेशा। और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका कमजोर रहेगा, बीमारियां बार बार हो सकती हैं, सर्दी खांसी जल्दी ज्यादा हो सकती है। उसी के विपरीत अगर आपका गट हेल्थी है तो क्या होगा? आप हर खाने को पचा लोगे, ओके। आपके पेट में कभी ब्लोटिंग नाम की चीज नहीं होगी, या फिर कभी कभी हो गई तो हो गई, ओके। आपका जो स्टूल रहेगा हमेशा कंसिस्टेंटली सॉलिड रहेगा, गैस नाम मात्र का हो सकता है, जो नेचुरल होता ही है,
बट नाम मात्र का, मतलब उसको ऐसा नहीं बोल सकते बीमारी के रूप में है वो। ओके, आप हमेशा खाना खाने के बाद एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहेगी, है ना। अभी आप अच्छा खा के, अच्छा देखिए, कहते भी है ना, चेहरा देख के पता चल जाता है, खाते पीते घर का है, कौन से घर का पता है ना। नींद अच्छी आती है, हंगर ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगती, एनर्जी हमेशा आपको कंसिस्टेंट मिलती रहती है शरीर से, बहुत कम आप डिप्रेशन में रहोगे, एंग्जाइटी नहीं होता, बीमार होने की कम चांस रहेंगे क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम आपकी अच्छी रहती है। तो एक गट बिगड़ता कैसे है ना। अगले स्लाइड में देखिए, ये सारी चीजें हैं। तो ये वो चीजें जो आपको निकालनी है आपके लाइफस्टाइल से अगर है तो, अल्कोहल, रिफाइंड शुगर, कैफीन, कॉफी वगैरह, तेल और सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड मतलब समझते हैं आप, जो भी चीज आपको मार्केट में पैक करके मिलता है बड़ा मस्त शाइनी शाइनी पैकेट में, बहुत अच्छे अच्छे कलर के साथ, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ, वो ऐसा टेस्ट होता है उनके अंदर की, बस आप खाते रहो तो खाते रहो, आपको पता ही नहीं चलता रुकना कब। डेयरी प्रोडक्ट, ऐसा देखा गया है कई सारे डेयरी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके गट के लिए सही नहीं है। मीट, मांस मच्छी, वो भी कहीं कहीं पर गट के लिए सही नहीं है, वो भी बुरे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। जब गट मतलब खराब गट मतलब बुरे बैक्टीरिया का बढ़ जाना। आपकी नींद और आपकी लाइफस्टाइल, ये बहुत मायने करता है। अगर आपका गट अगर खराब करना आपको है तो आप इन सब चीजों को कर सकते हो, अगर खराब नहीं करना है आपको अपनी, तो फिर आप इन सब चीजों से दूर रह सकते हो। तो अगर आपको अपना गट अगर ठीक रखना है तो क्या करना है आपको, चार चीजें, मोटी मोटी चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आपको हेल्दी फूड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब आपको अच्छा खाना खाना होगा। अच्छा मतलब ये नहीं कि सिर्फ दबा के खाना खा लिया, मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया, ऐसा नहीं है। मतलब न्यूट्रिशियस खाना खाना है आपको, एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, लाइफस्टाइल आपको आपकी कंट्रोल में रखनी होगी, जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप मैनेजमेंट की बात करते हैं। और अगर आपके खाने में अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो आपको सप्लीमेंट ऐड करना होगा। तो ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से आपका गट को सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर सपोज कि आपका गट अगर समझो खराब है आज, तो उसको किस तरह से ठीक करोगे, वो करोगे आप गट रिसेट से। ओके, तो गट रिसेट बेसिकली, नेक्स्ट स्लाइड। गट रिसेट बेसिकली है क्या। तो गट रिसेट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गट रिसेट हम तब करेंगे जब गट खराब होगा, है ना। जब गट खराब कब होगा, जब आपके बुरे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे और अच्छे बैक्टीरिया कम होंगे। तो उसको रिवर्स करने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है गट रिसेट, कि आपने बुरों को कम कर दिया और अच्छों को बढ़ा दिया। इसको करने के लिए तकरीबन 10 दिन का टाइम लगता है। तो आप पूछोगे 10 दिन क्यों, तो ये देखा गया है कई रिसर्चेस में कि जो चीज आपने आज खाई है वो आपके शरीर के किसी न किसी हिस्से में, मतलब गट के किसी न किसी हिस्से में अगले 7 से 10 दिन तक रहता है। उसका कुछ ना कुछ पार्ट, उसको निकलने के लिए टाइम लगता है शरीर से बाहर, या उसका जो इफेक्ट है बॉडी के अंदर वो खत्म होने के लिए कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो इसलिए गट रिसेट करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 10 दिन का टाइम लगता है। जब आप गट रिसेट करोगे तो आपको क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं, या फिर क्या क्या आपको लगेगा यार कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, है ना। अगली स्लाइड प्लीज। आपको लगेगा यार जो तकलीफ थी वो और बढ़ रही है, शायद क्योंकि आपको आदत नहीं, आपको क्योंकि आप बदलाव कर रहे हैं अपने लाइफ में कुछ, तो आपको अनईजी फील होगा, आपकी बॉडी को आदत नहीं होगी उन चीजों की, तो हो सकता है आपको वीकनेस भी लगे। बट डोंट वरी, ये सब चीज होते रहेगा, कोई इशू नहीं है। ओके, बॉडी को एक्सेप्ट करने की आदत लगानी पड़ेगी, तभी जाके बुरे बैक्टीरिया मरेंगे। तो जब उनको पता रहेगा हमारे लिए तो कुछ भी मिलने वाला है नहीं इधर, तो लेट्स गो आउट, और वो निकल जाएंगे वहां से। तो ये 10 दिन में आपके साथ हो सकता है, बट नॉट टू वरी। आपके साथ जो भी अटैच हैं लोग, वो आप उनके साथ बात कर सकते हो, वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या है गट रिसेट के, आपको अपने पेट को सुनना होगा कि आपका पेट क्या कह रहा है। जैसे है ना, जब ये हमारा पेट दर्द होता है तो हम बोलते हैं यार पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद गैस हो गया, या शायद हमको हमारा पेट पहले बता देता है हमें उल्टी होने वाली है, हमें हमारा पेट पहले बता देता है कि हमें पट्टी जाना है ना। तो ये
आपको अपने पेट को सुनना है कि अभी वो अच्छा सिग्नल दे रहा है आपको या बुरा सिग्नल दे रहा है। आपको अपने लाइफ से उन चीजों को निकाल देना है जो गट को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, आपको आपके स्ट्रेस में थोड़ा कमी करनी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ सॉल्यूशंस के साथ में। अगर आप यहाँ आते रहोगे तो आपको कहीं ना कहीं सुनने मिलेगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं। आपको आपके बहुत सारी हैबिट्स चेंज करनी होंगी, है ना। हो सकता है कुछ खाने की हैबिट हो सकता है सोने की हैबिट हो सकता है स्ट्रेस लेने की हैबिट है ना। हो सकता है कोई भी हैबिट, गलत हैबिट है उसको शायद निकालने की जरूरत पड़े। आपको सर्काडियन रिदम को समझना होगा। अभी सर्काडियन रिदम मैं भी यहाँ पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट वो है जो आपका शारीरिक जो आपका शरीर और जो प्रकृति है वो किस तरह से चलते हैं साथ में मिलके, बेसिकली वो है। किसी न किसी आपको सेशन में उसके बारे में बहुत सारा चीज सुनने मिलेगा। आपको सोने के बारे में सीखना होगा, आपको सोना अच्छी तरह से कैसा है वो करना होगा, समझना होगा, और फिर आपको स्लीप अच्छी नींद को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो 4 R क्या है गट हेल्थ के? 4 R है गट हेल्थ के: रिमूव, रिप्लेस, रीबैलेंस एंड रीसेट। मतलब कुछ चीजें आपको अपने लाइफ से निकालनी होंगी, कुछ चीजें आपको रिप्लेस करनी होंगी उसके जगह पे, कुछ चीजों को आपको बैलेंस करना होगा और कुछ चीजों को रिसेट करना होगा। तो रिमूव क्या करना है? आपको अपने लाइफ से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट को निकालना है। ये वो फूड हैबिट है जो आपके गट के लिए सही नहीं है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, कोई भी चीज जो रिफाइंड है, शक्कर हो गया, मैदा हो गया, ऐसे कोई भी चीज, रिफाइंड ऑयल हो गया। ओके, सैचुरेटेड फैट को निकालना है। तो जब आप इस प्रोसेस में आओगे तो आपको ये सब चीजें और डिटेल में बताई जाएंगी। तो इन चीजों को निकालना है आपको। इससे उसको रिप्लेस किससे करना है? आपको इसको कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जिसके अंदर फाइबर मिक्स हो, जिसका फाइबर निकाला ना गया हो, है ना। जैसे कि होल व्हीट हो सकता है, जैसे ज्वारी हो सकती है, बाजरा हो सकता है, रागी हो सकती है, या फिर अनपॉलिश्ड राइस हो सकता है, अनपॉलिश्ड दालें हो सकती है। ओके, आपको हेल्दी फैट रिप्लेस करना है सैचुरेटेड फैट की जगह पे। आपको हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी हिंदुस्तान प्रोटीन पूरा खाता नहीं है इसलिए। ओके, आपको रीबैलेंस करना। आपको रीबैलेंस क्या करना है? सिंपल, जो अनबैलेंस है विच इज माइक्रोबायोटा। कुछ अच्छे माइक्रोब जो कम हो गए हैं, जो बुरे माइक्रोब जो बढ़ गए हैं, उनको रिवर्स करना है। तो वो बैलेंस आपको करना है। आपको रिसेट करनी है आपके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम को प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ, क्योंकि हमने प्रोटीन का सोर्स जो नॉनवेज है, नॉनवेज भी आपके बैक्टीरिया को गलत बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा था। तो इसीलिए आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन से उसको रीसेट करना है। फिर हेल्दी गट के लिए हेल्दी टिप्स क्या रहेंगी, अगली स्लाइड में देखेंगे आप। जैसे कि हमने बहुत सारी चीज यही बता दी थी कि आपको होल ग्रेन खाना है, प्लांट बेस्ड फूड खाना है, आपको फर्मेंटेड फूड खाना है। फर्मेंटेड फूड मतलब जैसे कि आप इडली खाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ढोकला खाते हैं, है ना। तो इन 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 फूड्स को आप खा सकते हो। आपको ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। कौन कौन से ड्रिंक्स अवॉइड करनी है? एक तो अल्कोहल बेस्ड और एक शुगर बेस्ड। ओके, तो हाई शुगर जो मार्केट में पैक्ड जूस मिलते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, आपको उनको अवॉइड करना है। तो ये हेल्दी टिप्स हैं। अगर आप इनको, इस छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और फिर आपको फर्क दिखेगा आपके शरीर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, आपको पानी पीने का क्वांटिटी समझना पड़ेगा, कितना पीना है, कब पीना है, कैसे पीना है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है गट हेल्थ। आपने देखा होगा कि ये आपके बॉडी का वेस्ट मैनेज करता है, या आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, या आपका बॉडी का एसिडिक लेवल भी मेंटेन करता है। अगर आप कभी यूरिन करते हैं, बहुत ज़्यादा येलो आपका आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। आप बार बार यूरिन जाओगे लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको दिखेगा कि अभी वो कलर फेड होकर अभी व्हाइट की तरफ आने लग गया है। डिहाइड्रेशन से आपका, अगर अगर आपको डिहाइड्रेशन है, आपका माइंड बराबर काम नहीं करता, आपको थोड़ी वीकनेस लगेगी। ये खास करके मेरे साथ होता है।
मुझे जब भी थोड़ा लो फील करता हूँ मैं तुरंत पानी पीता हूँ, तुरंत एनर्जी आ जाती। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया क्यों। ओके, इस तरह से आपको, और ये जब आप पर प्रोग्राम में आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पानी पीना है, ये भी एक कैलकुलेशन है, और किस तरह से पीना है ये भी एक कैलकुलेशन। अगर मुझे बोलना है तो मैंने कहीं इसी सेशन में आप कहीं सुनोगे कि आपको खाना ऐसा खाना है जैसे आप पानी पी रहे हो। ओके, मतलब खाना इतना चबाना है कि पानी जैसा वो पतला हो जाए मुंह पे, इसका मतलब ये है। और पानी ऐसा पीना है जैसा खाना खा रहे हो, जैसे खाना हम स्लो खाते हैं वैसा पानी आपने स्लो पीना है। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी यहाँ पर, आप आते रहोगे तो आपको पता चलेगा, एक ही सेशन में उतना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ती है। डाइवर्सिटी मतलब ये कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बच्चों में बताया था 5,000 के आसपास अलग अलग स्पीसीज हैं बैक्टीरिया के, कभी कम भी हो जाते हैं, है ना। कुछ अच्छे हैं जो कम हो के मर गए, तो क्या करोगे फिर आप, है ना। तो अगर आपने अगर एक्सरसाइज किया तो आपके गट बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ती है। एंडोर्फिन्स बढ़ता है। एंडोर्फिन बेसिकली आपका हैप्पी हार्मोन है, आपको एक खुश रखता है। ओके, आपका पोस्चर इंप्रूव करता है। ऑब्वियसली जब आप खुश रहोगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है पेट में, तो आपका एक शारीरिक हाव भाव, जिसको पोस्चर को कहा जाता है, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहेगा आपका। आप इमेजिन करिए ना, किसी के पेट में गड़बड़ है और एक आदमी एकदम पूरा स्वस्थ है, दोनों किस तरह से दिखेंगे आपको जब आपके सामने खड़े होंगे। ये आपका वेट मैनेज करता है एक्सरसाइज, ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ऑब्वियसली है, जब आपका एंडोर्फिन लेवल बढ़ेगा, जब आप खुशी खुशी ज्यादा महसूस करोगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा। ये आपका मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ाता है, बेसिकली आपका अलर्टनेस बढ़ाता है, ताकि आपके काम करने में आपका इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, है ना, ये आपको राइट साइड का जो पिक्चर, अगर उसमें कुछ क्लियर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो इतना समझिएगा कि लेफ्ट में टीवी के पास बैठा है और राइट में वो आदमी भाग रहा है। तो राइट की तरफ जैसे आप जाते हो, मतलब जितना ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी करते हो, वैसे वैसे आपकी बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी बढ़ती है। और जितना आप आराम करते हो, जितने आपकी बॉडी रिलैक्स पोजिशन में रहती है, उतने आपके बैक्टीरिया के काउंट कम हो जाते हैं, और आपके इनफैक्ट डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया भी कम होते हैं। डाइवर्सिटी मतलब टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी, तो अच्छे बैक्टीरिया, शायद कुछ बैक्टीरिया तो मर ही जाए, गायब भी हो जाए आपके शरीर से, नो डाउट, सॉरी, नो प्रॉब्लम, वो आपको ठीक करने को हम बता देंगे। अगला स्लाइड। स्ट्रेस किस तरह से हमारे शरीर गट को वो करता है, गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। आपने देखा होगा जब आपको बहुत टेंशन आता है तो पेट में मरोड़ भी आते हैं, आपने सुना होगा, है ना। हिंदी में बहुत फेमस कहा था, मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है। और कभी कभी आपने पेट में दर्द हो रहा हो, और उस वक्त अगर आपके पास आके कोई ऐसा कोई काम आपके सामने आ जाए जिसमें दिमाग लगाना हो, आपको नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली पेट का और दिमाग का बहुत अच्छा एक रिलेशन है। और क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब जो बहुत लंबे तक चलने वाला स्ट्रेस से ये देखा गया है कि अगेन आपके बॉडी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती, सॉरी, उनकी क्वांटिटी तो कम होती होती है, उनकी डाइवर्सिटी भी कम, और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और जितना आपका क्रॉनिक स्ट्रेस कम रहता है, उतने आपके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, और डाइवर्स बैक्टीरिया भी, डाइवर्सिटी बैक्टीरिया की अच्छी रहती है, मतलब ज्यादा अलग अलग तरह के ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर रहते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस को भी मेंटेन करना है। तो स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वाटर हो गया, खाना आपको बता ही दिया हमने। अब आ जाता है, जब खाने में अब आते हैं तो थोड़ा उसके अंदर डीप डाइव करते हैं कि खाने के अंदर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो आपका लेफ्ट वाला स्लाइड आएगा, ये जो लेफ्ट वाला स्लाइड है आपने कई बार देखोगे आप, और कई बार देखा भी होगा आपने, अगर आप यहाँ रेगुलर आ रहे हो तो इसमें जो राइट साइड में लेफ्ट वाले स्लाइड में, लेफ्ट वाले पिक्चर में राइट साइड पे बॉटम वाला अगर आप देखोगे, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर ही हम बात करते हैं उसके अंदर। बेसिकली ये है कि ये जो स्लाइड है लेफ्ट, सॉरी, ये जो पिक्चर है लेफ्ट वाली, इसके अंदर हम इम्पोर्टेंस बताते हैं कि मॉर्निंग का खाना क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो सबसे नीचे वाला पार्ट आता है वो है बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया बेसिकली, बैक्टीरिया का ऑल्ट्रेशन होता है मॉर्निंग टाइम पे, कि मॉर्निंग टाइम में थोड़े कम रहते हैं अच्छे वाले, तो अच्छा खाना खाओगे तो बढ़ जाते हैं। तो उसको किस तरह से करोगे आप, तो बेसिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए 3
बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है प्रोटीन, दूसरा है फाइबर और तीसरा है प्रोबायोटिक। ये गट हेल्थ के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब इनके ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि कैसे है। अगले स्लाइड में अगर आप देखेंगे कि प्रोटीन का रोल क्या है गट बैक्टीरिया के अंदर। ये प्रोटीन आपके गट का बैरियर को सपोर्ट करता है ना। गट का बैरियर क्या है? जहां जहां खाना पास होता है तो जो नली होती है या जहां खाना रहता है तो उसकी जो वॉल होती है, जिस जगह पे है तो किसी जगह पे होगी तो वो बंद जगह होगी या फिर वो तो उसकी वॉल होगी। उसके जो स्किन होती, जो उसकी जो वॉल होती है, वॉल पे जो आउटर लेयर जो होता है वॉल का, अंदर की तरफ से सबसे पहला जो पार्ट होता है वो बेसिकली बैरियर है। वो उसको बिल्ड करने पे मदद करता है प्रोटीन। उससे क्या होता है कि बुरे बैक्टीरिया उधर ही चिपक जाते हैं, आगे जाते नहीं, है ना। उनको वहीं पर उसको मार के खत्म कर दिया जाता है। ये आपके इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। गट का जो इम्यूनिटी वाला सिस्टम है ये बढ़ाता है। आपको एक चीज इसमें बताऊं मैं कि तकरीबन 60% जो इम्यून हार्मोन्स हैं वो गट में ही बनते हैं। 60%। ये आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है प्रोटीन। अब आपको इन्फ्लेमेशन का अगर पता नहीं है तो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कभी आपको कहीं पर फोड़ी हुई है, हो सकता है हाथ पे या पाँव पे, कहीं भी किसी जगह पे, वहां पर होता क्या है? वहां पर आप देखोगे लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, गर्म रहता है, दर्द होता है ना। ये इन्फ्लेमेशन की एक निशानी है। ये क्योंकि ये आउटर स्किन पे हुआ है तो आपको पता चल जाता है, लेकिन अगर शरीर के अंदर कहीं हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा। ओके। तो ये जो अंदर के जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है या बाहर का भी जो भी होता है, इसको ये कंट्रोल में रखता है प्रोटीन। ये मेटाबोलाइट्स को बढ़ाता है। मेटाबोलाइट्स वैसे हमने बोला कि जो भी हम फैट्स वगैरह जो खाते हैं तो उसको मेटाबोलाइज करके उसके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो हमारे कई फंक्शंस में काम आते हैं शरीर के। तो ये उसको बढ़ाता है। ये आपका सिक्रेशन में मदद करता है। सिक्रेशन बेसिकली जो वेस्ट हम निकालते हैं शरीर से बाहर, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, ये प्रोटीन हो गया पहला। दूसरा है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक बेसिकली अगर आप देखोगे क्या होता है, प्रीबायोटिक बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। और प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक ये बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया हैं। तो हमको खाना है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों। प्रीबायोटिक क्यों? जो हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको खाना चाहिए। और प्रोबायोटिक इज बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया कम है उनकी क्वांटिटी बढ़ानी है। तो इसलिए आपको डाइटरी फाइबर और प्रीबायोटिक खाना है। ये बेसिकली डाइटरी फाइबर है। ये आपको क्यों करना है, क्यों लेना होता है फाइबर? क्योंकि ये आपका मेटाबोलाइट्स बढ़ाने में, अगेन मेटाबोलाइट सेम चीज है, क्योंकि आप डाइजेस्ट करते हो, मेटाबोलाइज करते हो तो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो कि आपके शरीर के बहुत सारे काम के लिए जरूरी है। ये आपका न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने में मदद करता है फाइबर। जो भी आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स, आप जो भी आपने खाना खाया तो उसका जो डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं तो बेसिकली वो शरीर एब्जॉर्ब करता है और हर सेल पे जाता है। तो ये उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि उनको खाना मिलता है फाइबर से। 2 टाइप के फाइबर होते हैं अगर आप देखोगे तो। एक होता है सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वाला अगला स्लाइड में प्लीज। सोल्यूबल फाइबर जो है ये पानी में डिजोल्व हो जाता है। ये आपकी सटैटी को बढ़ाता है ना। सटैटी बेसिकली क्या है? ये आपको मतलब भूख नहीं लगने देता। ये बहुत देर तक आपके शरीर में रहता है ना, आपको भूख नहीं लगने देता। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये आपके गट फ्लोरा को, मतलब गट के हेल्थ को
अच्छे रखने में मदद करता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है। ये किस चीज़ में मिलता है? ये आपको मिलेगा एप्पल्स में, बीन्स में, नट्स में, ओट मील में, स्वीट पोटैटो में, दालों में, इन चीज़ों में मिलता है। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है, ये पानी में नहीं घुलता। ये आपके स्टूल को आसानी से पास होने में मदद करता है। ये आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ को सपोर्ट करता है हेल्दी रखने में। ये आपको होल ग्रेन में आपको मिलेगा, जैसा होल व्हीट, लीफी वेजिटेबल ग्रीन्स, किनोवा, ब्राउन राइस एंड जो आप नट्स वगैरह खाते हैं, सीड्स वगैरह खाते हैं, उसमें ये जो है बेसिकली आपका जो स्टूल है उसको बल्की बनाने में मदद करता है और आपका जो बॉल मूवमेंट है उसको ठीक ठाक रखने में मदद करता है। तो इस तरह से जो दोनों फाइबर हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए और बेसिकली डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं हम प्रोबायोटिक पे। तो प्रोबायोटिक क्या है? जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रोबायोटिक जो है ये आपके शरीर के अच्छे बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? ये जब आप खाते हो तो आपके शरीर के जो बाकी अच्छे बैक्टीरिया हैं उनके साथ जाके इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करना, बातचीत नहीं करता, मतलब उनके साथ घुल मिल जाते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं। ओके, जिसके वजह से अगेन मेटाबोलाइज होने के बाद शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो आपके शरीर के लिए काम आते हैं। ये आपके जो बैरियर फंक्शन है उसको इम्प्रूव करते हैं। ये आपके एंजाइम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोबायोटिक काम करता है। अब आ जाते हैं एक प्री एंड प्रोबायोटिक जो न्यूट्रीलाइट का है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो प्रोबायोटिक है उसके अंदर एक बैक्टीरिया डाला गया है, लाइव बैक्टीरिया, जिसका नाम है बैक्टीरियस कोआगुलेंस यूनिक IS2। ओके, इधर एक ना प्रोबायोटिक के नीचे देखो छोटा सा लिखा रहेगा 2BCFU, कॉलोनी फंक्शन यूनिट, कुछ तो उसका मतलब है, मतलब 2 बिलियन कॉलोनी वाले यूनिट हैं उसके अंदर, प्रोबायोटिक के अंदर। और ये जो बैक्टीरियस है, सॉरी, बैसिलस कोगुलान, ये दूध में पाया जाता है। तो बेसिकली इसको दूध को सड़ा के उसके अंदर का बैक्टीरिया निकाल के इसको खाया जाता है। इसको इसके अंदर डाला गया है और इसकी खासियत क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या एसिडिक इन्वायरमेंट पे या किसी किसी एंजाइम से मर जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, तो वैसे उनकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर अच्छे बैक्टीरिया कम है तो ज्यादा करके वो उनकी जरूरत हमें नीचे है, वहां पर कम होंगे। तो वहां तक जाने के तक अगर हम कोई भी प्रोबायोटिक खा लें तो बीच में वो मर सकते हैं। मतलब वहां तक वो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो ना हीट संभाल पाएंगे, ना एसिडिक एनवायरनमेंट संभाल पाएंगे। कई एंजाइम ऐसे होंगे जिनकी वजह से मर जाएंगे। तो ऐसा हमें प्रोबायोटिक चाहिए है जो आखिरी तक पहुंचे, और वो खासियत सिर्फ बैसिलस कोआगुलेंस में ही है। इतना समझ जाइए। बाकी फिर उसके बेनिफिट, और यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट लिखे हैं। ये आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए सपोर्ट करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, मतलब ये कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब मैंने आपको थोड़ी बताया था फोड़ी वाला एग्जांपल, तो एंटी इन्फ्लेमेशन उसको ठीक करने की उसके अंदर क्षमता है। इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने में मदद करता है। ओके, बाउल फंक्शन के जो पेन रिलेटेड मूवमेंट, पेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं इस एक प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोबायोटिक है, जो आपके बॉडी का जो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाएगा। और 99% चांस है कि आपके बॉडी के अंदर अभी अच्छे बैक्टीरिया कम है। तो अगर आपको बढ़ाने हैं तो एक, जो बचे खुचे उनको अच्छा खाना देना है प्रीबायोटिक जो इसी टैबलेट के अंदर है, और दूसरा, अंदर की क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसी टैबलेट के अंदर
कुछ प्रोबायोटिक डाले हुए हैं। प्रोबायोटिक मतलब अच्छे बैक्टीरिया जो अंदर जाएंगे, और जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत कहां पर है, लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहीं पर उसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, वहीं पर उनकी जरूरत है, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो पहुंचेगा कौन सा टैबलेट, यही पहुंचेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस स्लाइड के अंदर आप देखोगे तीनों प्रोडक्ट, जो तीन चीज चाहिए हमें गट रिसेट के लिए, वो है आपका प्रोटीन, दूसरा है फाइबर, और तीसरा है प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो ये फाउंडेशनल गट हेल्थ के सॉल्यूशन बास्केट है। अगर आपको आपका गट रिसेट करना है, जहां तक हमारा मानना है, जो इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, सीरियसली फॉलो करते हैं, उन्हें तो पता ही है कि अगर आपको गट रिसेट है करना है तो इन तीन प्रोडक्ट की आपको बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। क्योंकि अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हो तो आपको नॉनवेज वो टाइम पे बंद करना है गट रिसेट के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिजाइन योर प्लेट। आपको अपना प्लेट डिजाइन करना है। डिजाइन करना है मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या कितना कितना खाना चाहिए। 50% आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होने चाहिए, 25% आपका प्रोटीन होना चाहिए, और 25% आपके आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब होने चाहिए। ओके। और आपने, अगर आप गट रिसेट फेज में हैं, तो आप गट रिसेट फेज में आपको आपका जो प्लेट है उसकी पिक्चर निकाल के एक सेपरेट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डालना है, ताकि अगर आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो खाने पे तो आपको बताया जाएगा। आपको आपका हेल्थ बड़ी जो है वो आपको सपोर्ट करेगा उसमें, है ना। तो करना क्या है आपको, अगर मैं आपको एक नटशेल में बोलूँ तो प्रोटीन, फाइबर और प्रोटीन, फाइबर और प्री प्रोबायोटिक दोनों एक एक कैप्सूल में वो लेना है। एक्सरसाइज करना है। कुछ खाना है जो आपने बंद करना है, जैसे कि सिगरेट, पैक फूड, दारू, है ना, मतलब अल्कोहल, फिर आपका नॉनवेज एंड मिल्क प्रोडक्ट, ये आपने बंद करना। खाना आपको बता दिया क्या क्या खाना है। एक्सरसाइज करना है, पानी अच्छे से पीना है, सोना ढंग से है, मतलब टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। आपको जो 8 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, वो आपको पूरी नींद होनी चाहिए। और आपको ये खाने का प्लेट शेयर करना है। तो गट रिसेट फेस यही है आपका। कुछ चीजें जो आपको करनी है नेक्स्ट स्लाइड में है। आपको आपकी डाइट फ्रूट और वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए। आपको प्रीबायोटिक ऐड करना है जो कि आपके कैप्सूल के अंदर आ गया। पानी पीते रहना है, एक्सरसाइज करना है, खाने को चबा चबा के खाना है। ये आपको वापस किसी न किसी, मेरे ख्याल से लास्ट वीक ही हमने फ्राइडे के दिन ही इसके ऊपर हमने को डिस्कस किया था। स्ट्रेस को मैनेज करने को सीखना है, फाइबर रिच फूड खाना है, नींद बराबर से लेनी है, डे लाइट में ही अपने खाना खा लेना है, रात को खाना नहीं खाना है, प्रेफरेबली 7 साढ़े 7 के बाद। न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है, प्लांट बेस्ड फूड खाना है, और सोने से और आखिरी खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप देना। जो नहीं करना है वो है कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में है, रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीनी है, अल्कोहल नहीं पीना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कैफीन नहीं, चाय कॉफी नहीं पीनी है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, कैलोरी डेंस फूड नहीं खाना है, एनिमल बेस्ड फूड नहीं खाना है। खाते वक्त कम से कम ऐसा काम नहीं करना है कि जैसे आप टीवी के सामने नहीं बैठ के खाना है, और सोने से ठीक पहले नहीं खाना है, डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि करना क्या है फिर आपने इसके साथ, वो है शाइन। आप हर दिन कोई ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करिए। न्यूट्रिशियस फूड खाइए। आप अपने इंटेंशन को क्लियर करिए, आपके गोल को क्लियर रखिए, उसको विजुअलाइज करिए और उसके लिए पाथ बनाइए। कोई नई चीज रोज सीखिए और रोज के रोज एक्सरसाइज करिए। और अगर आप ये करते रहोगे तो हमें पक्का यकीन है आप भी एक दिन शाइन करोगे। आई एम कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रुचिता। Thank you so much, Manoj. I think that was perfectly explained and summarized. Guys, if we have any questions, you could just raise your hands. I see now.
थैंक यू सो मच। आई होप आज के सेशन से सबको नॉलेज मिली है एंड सबको समझ आया है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ हेल्दी गट and the importance of including a totality in our lifestyle so that we can maintain a healthy gut. Thank you so much. You've been a great audience. Good night. We'll see you in the next session.